नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली बेसिस बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करें। सो लेसन 22, वेस्ट नो टाइम, असर्ट फ्रॉम सोनिया चॉकलेट, सो लेसन and full purpose channel material. The root of this lesson is to be fully self-reliant. It is important and good, but seek support, but not to ask, wish, or dream that anyone will carry you. Your soul seeks self-realization because that is its highest purpose. Desiring or allowing yourself to be propped up by another is a great waste of time because the spirit will rebel. You may not know when, but you can be certain that it will. When you embrace time as gold to expand carefully on what is important and true for you, life becomes eternal. You stretch your minutes and no longer chase them, and they serve you and your growth. The more you value them, the more you will have. Ultimately, you will transcend the clock altogether and turn your existence into an exquisite work of self-realization. Greatness can be achieved in the span of one incarnation when you use it wisely. Just look at Leonardo da Vinci or Michelangelo to cite a couple of examples of what is possible. Treat time as the precious commodity that it is, and don't keep out only worthy endeavors. Doing this will take you directly toward mastery of purpose on a soul level and will put you fully in charge of your life. Make no commitment that you do not intend to honor fully. Allocate daily moments to be grateful and enjoy the now. Take time every day for important relationships and activities without apologizing for doing so. Say no without hesitation to things that waste your time. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सो लेसन 22, वेस्ट नो टाइम, असर फ्रॉम सोनिया चॉकलेट, सो लेसन and so purpose channel material. The root of this lesson is to be fully self-reliant. It is important and good, but seek support, but not to ask, wish, or dream that anyone will carry you. Your soul seeks self-realization because that is its highest purpose. Desiring or allowing yourself to be propped up by another is a great waste of time because the spirit will rebel. You may not know when, but you can be certain that it will. When you embrace time as gold to expand carefully on what is important and true for you, life becomes eternal. You stretch your minutes and no longer chase them, and they serve you and your growth. The more you value them, the more you will have. Ultimately, you will transcend the clock altogether and turn your existence into a suite of your self-realization. Greatness can be achieved in the span of one incarnation when you use it wisely. Just look at Leonardo da Vinci or Michelangelo to cite a couple of examples of what is possible. Treat time as the precious commodity that it is and don't it out only worthy endeavors. Doing this will take you directly toward mastery of purpose on a soul level and will put you fully in charge of your life. Make no commitment that you do not intend to honor fully. Allocate daily moments to be grateful and enjoy the now. Take time every day for important relationships and activities without apologizing for doing so. Say no without hesitation to things that waste your time. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा पाठ 22वां अध्याय। सोनिया चॉकलेट के अंश, आत्मा के सबक और आत्मा का उद्देश्य, चैनल सामग्री। इस पाठ का मूल पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है। यह महत्वपूर्ण है और अच्छा है आप सहायता मांगे, लेकिन यह ना मांगे, ना ही यह इच्छा करें या ना हो
भी अपना सपना देखें कि कोई आपकी सहारा देगा। आपकी आत्मा आत्मा साक्षात्कार चाहती है क्योंकि यही उसका सर्वोच्च उद्देश्य है। खुद को किसी दूसरे के सहारे की चाहत रखना या उसे सहने देना समय की बर्बादी है, क्योंकि आत्मा विद्रोह करेगी। आप नहीं जानते कि कब, लेकिन आप निश्चित हो सकते हैं कि यह जरूर होगा। जब आप समय को सोने की तरह अपनाते हैं तो ध्यानपूर्वक उस पर खर्च करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और सत्य है, तो जीवन शाश्वत हो जाता है। आप अपने मिनटों को बढ़ाते हैं और उनका पीछा नहीं करते। वे आपकी और आपके विकास की सेवा करते हैं। जितना अधिक आप उन्हें महत्व देंगे उतना ही अधिक आपके पास होगा। अंततः आप समय की सीमाओं से परे चले जाएंगे और अपने अस्तित्व को आत्म साक्षात्कार के एक उत्कृष्ट कार्य में बदल देंगे। महानता एक ही जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। लियोनार्डो दा विंची या माइकल एंजेलो को ही देख लीजिए। कुछ उदाहरण हैं कि क्या संभव है। समय के एक अनमोल वस्तु की तरह समझे, इसे केवल योग प्रयासों पर ही खर्च करें। ऐसा करने से आप सीधे आत्मा के स्तर पर उद्देश्य की महारत की ओर बढ़ेंगे और अपने जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण रख पाएंगे। ऐसा कोई प्रतियोगिता ना करें जिसका आप पूरी तरह पालन ना करना चाहें। प्रतिदिन कुछ क्षण कृतज्ञ होने और वर्तमान का आनंद लेने के लिए निर्धारित करें। हर दिन महत्वपूर्ण रिश्तों और गतिविधियों के लिए माफी मांगे, समय निकालें। उन चीजों के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के नहीं कहें जो आपका समय बर्बाद करती है। आइए दोस्तों, फिर दोबारा इसको हम ध्यान से सुनते हैं। आत्मा का पाठ 22वां अध्याय। यहाँ पत्री सर पिछले अध्याय के माध्यम से हमें कई बार बताया है कि अपने समय को बर्बाद मत करो। फिर सोनिया चॉकलेट की पुस्तक आत्मा के सबक और आत्मा उद्देश्य से लेकर बता रहे हैं। उस पाठ का मूल पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है। यह महत्वपूर्ण और अच्छा है। आप सहायता मांगे, लेकिन यह ना मांगे, ना ही यह इच्छा करें या ना ही यह आप सपना देखें कि आपको कोई सहारा देगा। आपकी आत्मा आत्म साक्षात्कार चाहती है क्योंकि यह उसका सर्वोच्च उद्देश्य है। दोस्तों, ये तभी संभव है जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करेंगे, तभी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। खुद को किसी दूसरे के सहारे की चाहत रखना या उसे सहने देना समय की बर्बादी है, क्योंकि आत्मा विद्रोह करेगी। आप नहीं जानते कब, लेकिन आप निश्चित हो सकते हैं कि यह जरूर होगा। जब आप समय के सोने की तरह अपनाते हैं और ध्यान पूर्वक उस पर खर्च करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण और सत्य है, तो जीवन शाश्वत हो जाता है। आप अपने मिनटों को बढ़ाते हैं और ये आपके विकास की ओर सेवा करता है। जितना अधिक आप उन्हें महत्व देते हैं उतना ही अधिक आपके पास होगा। अंततः आप समय की सीमाओं से परे चले जाएंगे और अपने अस्तित्व को आत्म साक्षात्कार के एक उत्कृष्ट कार्य में बदल देंगे। महानता एक ही जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पति शर्मा इस अध्याय के बारे में बता रहे हैं कि महानता को हम जो प्राप्त करना चाहते हैं इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं, एक ही जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, तो शर्ते आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। अपने समय को बर्बाद न करें, बुद्धिमानी से उपयोग करें, इसके बारे में बता रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची या माइकल एंजेलो को ही देखें। कुछ उदाहरण के लिए, क्या यह संभव है। समय के एक अनमोल वस्तु की तरह समझें, समय को एक अनमोल वस्तु की तरह समझें और इसे केवल योग प्रयासों पर ही खर्च करें। ऐसा करने से आप आत्मा के स्तर पर उद्देश्य की महारत की ओर बढ़ेंगे और अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रण कर पाएंगे। ऐसा कोई प्रतियोगिता न करें जिसका आप पूरी तरह पालन न करना चाहें। प्रतिदिन कुछ क्षण कृतज्ञ होने आभार उन्हें ग्रेटिट्यूड में रहने के लिए बता रहे हैं और वर्तमान का आनंद लेने के लिए निर्धारित करें। हर दिन महत्वपूर्ण रिश्तों और गतिविधियों के लिए माफी मांगे और समय निकालें। उन चीजों के लिए बिना किसी हिचकिचाहट नहीं कहें
जिसमें आपका समय बर्बाद होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि हर दिन महत्वपूर्ण रिश्तों और गतिविधियों के लिए माफी मांगे और समय निकालें। उन चीजों के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के लिए नहीं कहें जो आपका समय बर्बाद करती है। दोस्तों, यहाँ पति सर फिर ने हमें बताया कि अपने समय का समय से उपयोग करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमें नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, जो पति सर के बताए आनापानसति ध्यान, श्वासों के साथ ध्यान जो बताया है, और स्वाध्याय संयम संगति, इनके माध्यम से हम समय का सदुपयोग करेंगे और अपना जीवन को पूरा नियंत्रित कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर आपको नए अध्याय के साथ उपस्थित दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।